Hello everyone. Now in our design of structure we show different type of load acting on the structure. So there are types of load: vertical load, horizontal load and longitudinal load. So in a vertical load it's also known as gravity load. So types of gravity load as well as vertical load are dead load, live load, impact load, and horizontal load are wind load, earthquake load. So it is horizontal load, and longitudinal loads are moving load. So now previous video we saw that number of load acting on the structure. So our next is wind load. So how it act on a building? We see how wind load act on a building or structure. So wind load is considered in a design of tall building. तो wind load हम कब consider करेंगे? So when design of tall structure, high rise building. So the force exerted by the horizontal compound of wind it is to be considered in the design of building. ये जो विंड लोड है हम कैसे कंसीडर करेंगे, बिल्डिंग पर कैसे एक्ट करेगा? हॉरिजॉन्टली. सो इट इज़ फोर्स एक्सर्टेड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ विंड इज टू बी कंसीडर इन द डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग. इट्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ विंड एंड शेप एंड साइज ऑफ द बिल्डिंग. किस पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी ऑफ विंड, विंड की वेलोसिटी क्या है, एंड बिल्डिंग का शेप एंड साइज कैसा है. So complete detail of calculating wind load on a structure is given in IS 875 Part 3 1987. Brief idea of this provision are given below. ठीक है, तो ये जो विंड लोड एक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उस बेस पे हम स्ट्रक्चर का डिज़ाइन कैसे करेंगे और कैलकुलेट कैसे करेंगे विंड लोड बिल्डिंग पे एक्ट कर रहा है. सो ये पूरी डिटेल हमें दी गई है IS 875 Part 3 1987. Here some brief description are given here. ठीक है, कि some brief discussion दिया गया है how to calculate wind load acting on the building or a tall building. So depending upon the locality of the structure, basic wind speed may be obtained from अपेंडिक्स ए और कलर मैप ऑफ इंडिया गिवन इन टू कोड. ठीक है, आप लोगों को एक कोड दिया जाएगा, उसमें डिफरेंट लोकेशन का विंड स्पीड दिया गया. सपोज हमारे साउथ गुजरात में जोन 5 आएगा, ठीक है, तो नॉर्मली उस लोकेशन का विंड स्पीड दिया गया होगा, तो उसको आप कंसीडर करेंगे बेसिक विंड स्पीड VB. सो डिज़ाइन विंड वेलोसिटी इज ऑब्टेन बाय द एक्सप्रेशन. ठीक है, तो विंड वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? VZ इज इक्वल टू VB K1 K2 K3 मीटर पर सेकेंड. सो ये दिया गया है इक्वेशन IS 875 Part 3 पेज नंबर 8. सो वेयर VB इज इक्वल बेसिक विंड स्पीड मीटर पर सेकेंड विच इज ऑब्टेन in the location of the structure. Then K1 risk coefficient, K2 terrain height structure size factor, ये also दिया गया है 875 Part 3 में. Then K3 topography factor. So design wind pressure is given by PZ equal to 0.6 VZ square Newton per meter square. So in this way we can find wind velocity, wind pressure. So up to a height of 30 मीटर the wind pressure is considered to act uniformly. ठीक है, कि जो अपना स्ट्रक्चर है उसकी हाइट क्या होगी? 30 मीटर. तो विंड प्रेशर हमें कैसे कंसिडर करना है? इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्टिंग ऑन द बिल्डिंग. एंड नाउ सपोज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग अबव द 3 मीटर, तो विंड प्रेशर इज इंक्रीज. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड विंड लोड्स. नाउ सेकेंड, स्नो लोड्स. So actually load due to snow will depend upon the shape of the roof and its capacity to retain the snow. ठीक है, तो स्नो लो हम कैसे
लोड कैसे हम फाइंड करेंगे? सो इट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द रूफ ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का रूफ कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। एंड कैपेसिटी टू रिटेन द स्नो, ठीक है, वो रूफ जो डिज़ाइन किया गया है वो कितना स्नो को रिटेन करेगा, कितनी कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करेगा। सो एक्चुअल लोड ड्यू टू स्नो विल डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द रूफ एंड इट्स कैपेसिटी ऑफ द रिटेन द स्नो. So it is also given in IS 875 part 4 1987 deals with the snow loads on a roof of the building for the building to be located in the region where snow is likely to fall. ठीक है, तो रूफ की डिज़ाइन कैसा करना है वो लोकेशन के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, नॉर्मली हमारे इंडिया में स्नो लोड को कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज our country it depends on monsoon, so snow load is to be considered in a design. The snow load act vertically downward and may be expressed in kilonewton meter square or newton per meter square. So the minimum snow load on a roof which is subjected to snow accumulation is obtained by the expression S is equal to mu into S0. ठीक है, तो लोड ऑन अ स्नो on a roof can be derived by the equation S is equal to mu into S0. ठीक है, स्नो लोड हम कैसे डिराइव करेंगे? इक्वेशन इज S is equal to mu into S0 where S is equal to design snow load on a plan area of a roof, mu shape coefficient and S ground snow load. So in this way we can calculate snow load on the structure. नाउ म्यू डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ रूफ. म्यू किस पे डिपेंड करेगा? शेप ऑफ द रूफ, बिकॉज इट इज द शेप कोएफिशिएंट, सो ऑब्वियसली इट्स डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द रूफ. एंड फॉर सम कॉमन शेप ऑफ द कोड, फॉर सम कॉमन शेप द कोड गिव शेप कोएफिशिएंट. ठीक है, एंड वेयर द स्लोप ऑफ रूफ इज मोर देन 60 डिग्री दिस लोड इज नॉट कंसिडर. ठीक है, कि रूफ का जो स्लोप मोर देन 60 डिग्री होगा सो स्नो लोड इज कंसिडर नहीं करेगा. सो आवर नेक्स्ट इज अर्थक्वेक लोड्स. सो क्या है अर्थक्वेक लोड एंड हाउ इट एक्ट ऑन अ स्ट्रक्चर? सो अर्थक्वेक शॉक्स कोज मूवमेंट ऑफ फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, और जब अर्थक्वेक आएगा तो उसका शॉक कहाँ पे एक्ट हो? शॉक की वजह से स्ट्रक्चर में क्या होगा? जो फाउंडेशन है उसमें क्या होगा? मूवमेंट आएगा. सो इट कोज शेकिंग ऑफ द ग्राउंड इन ऑल द डायरेक्शन अलोंग टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड द वर्टिकल डायरेक्शन. ठीक है, जो शॉक आएगा अर्थक्वेक की वजह से वो ग्राउंड को हिलाएगा 3 डायरेक्शन में. ठीक है, एक्स एंड वाई इट इज़ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन इट इज़ जेड डायरेक्शन. सो इसकी वजह से क्या होगा? जो फाउंडेशन है स्ट्रक्चर का उसमें क्या आएगा? मूवमेंट. ठीक है, सो ऑल द स्ट्रक्चर आर प्राइमरी डिजाइन टू कैरी द ग्रेविटी लोड. ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर हो जैसे कि कॉमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, एक्सेट्रा. सो प्राइमरी कैसे डिज़ाइन करेगा? इट्स कैरी ऑल दी ग्रेविटी लोड्स. ठीक है, सो दे आर डिज़ाइन फॉर अ फोर्स इक्वल टू mg एक्टिंग ऑन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो डिज़ाइन में क्या हम कंसिडर करेंगे? m इंटू जी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. सो डाउनवर्ड फोर्स mg इज अ कॉल ग्रेविटी लोड. सो ग्रेविटी लोड इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रक्चर एंड इट इज गिवन बाय m इंटू जी. So the vertical acceleration during ground shaking either add to or subtract from the acceleration due to gravity. ठीक है, जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, ड्यूरिंग ग्राउंड शेकिंग, ग्राउंड का शेक होगा. ठीक है, ग्राउंड में क्या होगा? ड्यूरिंग अर्थक्वेक शॉक आएगा तो उसकी वजह से शेक होगा. एट दैट टाइम वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा. सो आइडर ऐड और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जो ग्रेविटी फोर्स है तो उसमें हम क्या करेंगे? उस एक्सेलरेशन को वर्टिकल को ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, सो सिंस फैक्टर ऑफ सेफ्टी आर यूज इन द डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर टू द रेजिस्ट द ग्रेविटी लोड. सो
in calculation of gravity load there are factor of safety used suppose 1.5 factor of safety is used. ठीक है, जो 1.5 हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करेंगे, सो मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी लोड, सो ऑब्वियसली ग्रेविटी लोड बढ़ जाएगा, उसके हिसाब से हम स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे. सो ड्यूरिंग अर्थक्वेक जो वर्टिकल एक्सेलरेशन आएगा, ग्राउंड का शेक होगा, ठीक है, तो हमें ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, उसको निकालना है, वो हम डिसाइड करेंगे. सो यूजुअली मोस्ट स्ट्रक्चर टेंड टू बी एडेक्वेट अगेंस्ट वर्टिकल शेकिंग. सो हाउएवर वर्टिकल शेकिंग अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन रिमेन द कॉन्स्टेंट. ठीक है, structure designed for gravity load in general may not be able to safely sustain the effect of horizontal earthquake shaking. Hence, it is necessary to ensure advocacy of the structure against horizontal earthquake effect. So, here some method are given. So, as per IS 1893/2002, the following method be used for computing lateral force on a building. ठीक है, so how to calculate earthquake load? So there are two methods are given as per IS 1893/2002. So first is seismic coefficient method and second response spectrum method. So according to seismic coefficient method, the total design lateral force base shear VB shall be determined by expression VB equal to AH into AW, which for its formula is given in IS 18931/2002. ठीक है, जो ये फॉर्मूला है हमें दी गई है IS 18933/2002, क्लोज नंबर 753, पेज नंबर 24. सो वेयर AH इक्वल टू डिजाइन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन स्पेक्ट्रम वैल्यू, W इज इक्वल टू seismic weight ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है, so this is in seismic coefficient method. So base shear VB is determined by the VB is equal to AH into W. Now next is other forces and effect. ठीक है, wind load देखा, then snow loads and earthquake loads. Now some other forces and effect. So as per IS 456/2000, clause 19(6), in addition to above discussed load, amount shall be taken of the following forces and effect. They are liable to affect the safety and serviceability of the structure. So first is foundation movement, elastic axial shortening, soil and fluid pressure, vibration, fatigue, impact and erection load. So these are the other forces and their effect, which is given in IS 1940, IS 875, part 5 and part 2. So now here some load combination. So in the limit state design of reinforced concrete and pressure concrete structure, the following load combination shall be accounted for. First is 1.5 dead load plus live load imposed load. Second, 1.5 dead load plus or minus wind load. Third, 1.5 dead load plus earthquake load. Fourth, 1.5 DL plus IL plus or minus WL. Fifth, 1.2 DL plus IL plus EL. ठीक है, while considering wind load, substitute wind load for earthquake load. Detailed load combination are given in IS 875 part 5 1987. So ये जो लोड कम्बिनेशन है वो हमें दिया गया है IS 1893/2002, पेज नंबर 13. Also it is given in IS 456/2000, पेज 68, टेबल नंबर 18. So वहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. So this is the load combination of the load. So now some design strength and stiffness. So what is strength and what is stiffness? First of all, strength and stiffness किसे बोलेंगे? So strength is the ability of material to resist failure. ठीक है,
कि कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है वो फेलियर होने से बचेगा. सो इट इज़ द कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल मेंबर. ठीक है. वाइस वर्सा स्टिफनेस किसे बोलेंगे? एबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन. कोई भी स्ट्रक्चर पे लोड आएगा एट द टाइम वो डिफॉर्म होगा, तो उस डिफॉर्म को वो बेयर करेगा. डिफॉर्म को उसकी एबिलिटी होगी, डिफॉर्मेशन नहीं होने देगा. सो इट इज़ द स्टिफनेस ऑफ द मटीरियल, स्ट्रक्चरल मेंबर या मटीरियल. ठीक है. सो स्ट्रेंथ क्या है? व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ इज एबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर टू रेजिस्ट फेलियर एंड स्टिफनेस इज एबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन.